Okay, the question is like, we are given with one figure and the figure is like here it is given that PQRS is a quadrilateral, and this figure, this PQRS is named in this way in the given figure. PQRS is a quadrilateral and T and U are respectively points on PS and RS. T is a point on PS लाइन के ऊपर एक पॉइंट है विच इज़ नेम्ड एज T, एंड RS लाइन के ऊपर एक पॉइंट है विच इज़ नेम्ड एट U. T और U दो पॉइंट्स हैं ऑन द लाइन PS एंड RU सच दैट PQ इज़ इक्वल्स टू RQ. ये पॉइंट्स इस तरह से हैं, इसमें क्या है, ये PQ and RQ, these two arms are equal, and angle PQT means we are talking about this angle PQT is equals to angle RQU means we are talking about this angle. These two angles are equal. तो यहाँ पे पहला क्या इक्वल दिया हुआ है, two arms of the quadrilateral, that is PQ is equals to RQ, then two angles, that is angle PQT is equals to angle RQU, ये भी इक्वल दिया हुआ है, and in the next angle TQS, it means we are talking about this angle, is equals to angle UQS. ये एंगल UQS इसके इक्वल है, ठीक है. एंगल TQS इज इक्वल्स टू एंगल UQS. ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है. अब करना क्या है हमें, वी हैव टू प्रूव दैट QT is equals to QU. QT और QU equal है, it means these two arms QT and QU, these two arms are equal. ये हमें प्रूव करना है. कैसे प्रूव कर सकते हैं, एनी आइडिया? UQR एंड विच वन, अच्छा UQS एंड TQS, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें. देखते हैं क्या ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे. दीज टू एंगल्स आर इक्वल, दिस इज़ गिवन टू अस, दिस इज़ अ कॉमन लाइन, ये भी ठीक है. अदर देन दिस एक और क्राइटेरिया क्या हो सकता है इक्वल, ओके फाइन, नहीं होगा, नहीं हो रहा. अब इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है तो ये भी पॉसिबल है. PQT एंड RQU को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें. इफ़ यू प्रूव दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन माइट बी विद द हेल्प ऑफ CPCT वी कैन से QT एंड QU are equal, but let's check out whether these two triangles are congruent. Possibility is there or not. Okay fine, one angle is equal, it is given to us in the question. These two arms PQ and RQ both are equal, this is also given to us in the question. What about the third criterion? Again we got stuck with the third criterion. We are getting only two similarities, third one is missing. Then how to prove that these two arms are equal? Okay, let's see. For a moment, if I consider this triangle PQS, for a moment just forget about these two lines, इन दोनों lines को भूल जाओ. Consider triangle PQS and
ट्रायंगल आर क्यू एस, ये जो दोनों बड़े वाले ट्रायंगल्स दिख रहे हैं मैंने इनको कंसिडर किया. लेट्स सी वेदर दीज आर लाइक कॉन्ग्रुएंट और नॉट. इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पॉसिबल है या नहीं है. पी क्यू एंड आर क्यू बोथ आर इक्वल, इट इज गिवन टू अस. दिस थिंग इज गिवन टू अस. Then one side is common, that is QS is equals to QS. This is a common arm. For just to prove I am naming these angles. Let this be angle 1, this be angle 2, this one be angle 3 and this one be angle 4. थोड़ा सॉल्व करने या समझने के लिए अभी ईजी हो जाएगा. It is given in the question that angle 1 is equals to angle 2. दिया हुआ है ये क्वेश्चन में. It is also given that angle 3 is equals to angle 4. ये भी given है. If suppose we add these two, angle 1 प्लस एंगल 3, इसको ऐड कर दिया हमने एंड इन दोनों को ऐड कर दें. एंगल 2 प्लस एंगल 4, सॉरी दिस इज एंगल 2 प्लस एंगल 4. सो क्या इनका सम इक्वल आएगा? सी yes, angle 3 and angle 4 both are equal. It means we are adding the same thing to this angle. सेम ही थिंग हम दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं. It means their sum will be equal. Angle 1 plus 3 will be equals to angle 2 plus 4. होगा या नहीं होगा? यहाँ पे कुछ डाउट है तो बोलो. ओके फाइन. व्हाट इज एंगल 1 प्लस एंगल 3? एंगल 1 और एंगल 3 है क्या? एंगल पी क्यू एस, हाँ एस क्यू पी और एस एंगल पी क्यू एस. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस 4. द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज एंगल आर क्यू एस. We can say that angle PQS is equals to angle RQS, and these two angles are the parts of triangle PQS and triangle RQS. PQS, this is the angle which is formed in triangle PQS, and angle RQS, it means RQS. We are talking about this complete angle. This is the angle which is formed in triangle RQS. तो इनके पार्ट्स हैं. From here we got that these two angles are equal. Now we are getting one side, again one side and one angle. So let's see whether side angle side criterion is possible or not. ये वाली side हमने equate की थी. Then we have considered this angle and again we are taking this side. So side, angle and side. We can say that triangle PQS is congruent to triangle RQS by side angle side congruency rule. हम कह सकते हैं कि PQS और RQS दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं by side angle side congruency rule. But by after proving that these two triangles are congruent, we can't say that QT and QU both are equal. ये प्रूफ करने के बाद हमें कहीं से भी QT और QU का रिलेशन नहीं मिल रहा है. ठीक है. आप तो QT और QU का रिलेशन अब हमें मिलेगा कहाँ से आएगा QT और QU इक्वल है. 3 4 को 1 2 के इक्वल करेंगे कैसे पर?
देखो यहाँ पर हमने प्रूफ किया पी क्यू एस इक्वल है, ठीक। यहाँ पर एक चीज़ बताओ मुझे, कैन वी से दैट दिस एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल आर आफ्टर प्रूविंग दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं एंगल पी और एंगल आर इक्वल है? Yes, we can say that angle P is equals to angle R because these are the corresponding parts of the congruent triangle. Just now we have proved these two triangles are congruent. See the angle formed between this double marked line and the side which was not equal, and here also the angle formed between double marked line and this is uncommon side which was not equal. इन दोनों के बीच में भी यही एंगल बन रहा है. It means these are the corresponding parts. ये क्या है आपके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है. सो वी कैन से दैट एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल R. नाउ लेट्स सी, वी विल कंसीडर ट्रायंगल QPT और एल्स PQT एंड ट्रायंगल RQU. ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कंसीडर किए, छोटे वाले PQT and RQU. In this it is given to us that PQ and RQ both are equal. ये क्वेश्चन में ही गिवन है. Angle 1 and angle 2, these two angles are equal. This is also given. And after that just now we have proved angle P and angle R. These two angles are also equal. ये हमने प्रूफ कर दिया है. तो यहाँ से देखो हमारे पास दो एंगल्स मिल रहे हैं एंड वी आर गेटिंग वन साइड. सो एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन इज possible, but let's check out whether this is possible or not, this is following the series or not. We have considered this angle, this side and again this angle. It means it is following the series. So we can say that triangle PQT is congruent to triangle RQU by angle side angle criterion, and now we can say that QT is equals to QU. These are the corresponding parts. सी हमने स्टार्टिंग में ऐसा ही कुछ एज्यूम किया था कि अगर TQS और SUQS दीज टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, देन माइट बी पॉसिबल वी कैन से QT एंड QU बोथ आर इक्वल. और एल्स दी अनदर पॉसिबिलिटी वॉज इफ सपोज वी प्रूव दैट PQT एंड RQU these two triangles are congruent, then might be possible by we can say QT and QU both are equal by CPCT. बट हमारे पास पूरे पॉसिबल क्राइटेरियंस नहीं मिल पा रहे थे दैट वी कैन से दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. फॉर दैट वी टुक द हेल्प ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स. फ्रॉम हियर वी हैव प्रूव्ड दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल, and after with the help of this, after that we have proved these two triangles are equal and हमने इनको congruent कर दिया था. इन अनदर केस आप ऐसा भी कर सकते थे. देखो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका नहीं होता. एंड इन अनदर केस यू कैन ऑल्सो से दैट दीज टू एंगल, जैसे मैंने इनको CPCT से इक्वल किया था, आप क्या कर सकते थे, इसको CPCT से इक्वल कर लेते हैं. These angles are also the parts of PQS and RQS. तो ये भी CPCT से इक्वल हो सकते थे. ये अगर CPCT से इक्वल हो जाते देन हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करते, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते. कैसे, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन से. ये एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट हो जाता. आफ्टर दैट बाय CPCT वी कैन से दैट QT एंड QU बोथ द साइड्स आर इक्वल. क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. We are given with one figure.
This triangle is TRS and these points are marked as A and B. Here few angles are marked, that is, this is your angle 2, this is your angle 3, and this is your angle 1, and this is your angle 4. It is already marked in the question, and the question is like, it is given that RT is equals to TS. It is given in the question that this RT, this line is equals to TS, this complete line, RT and TS both are equal. ये क्वेश्चन में आपको गिवन है. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे. एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये गिवन है. एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 दिया हुआ है. एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, ये इक्वल नहीं दिए हैं, उसका डबल है. एंगल 1 इज डबल ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 4 इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3. Angle 1 is twice of angle 2 and angle 4 is twice of angle 3, and we have to prove that triangle RBT is congruent to triangle SAT. These two triangles are congruent, ये हमें प्रूफ करना है. Triangle RBT means we are talking about this triangle, and triangle SAT means we are talking about this triangle. देखते हैं पहले ओरली क्या ये इक्वल प्रूव हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन RBT and SAT, this side RT and ST both are equal. This is given to us in the question. Angle T is common. This is also given. अब दो तो हो गए, उसके बाद और क्या हो सकता है? थर्ड क्राइटेरियन कहाँ से आएगा? एक में ही फंसते हैं हम हमेशा, दो तो हो जाता है प्रूफ. कंसीडर कर लेते हैं 1 मिनट. इन ट्रायंगल RBT and triangle SAT, this is given to us that RT is equals to TS, and it is we can say that angle T is equals to angle T. This is common angle. Now what is the third criterion? थर्ड क्राइटेरियन में क्या बोल रहे थे आप? But angle R is not the part of this triangle TRB. ये पूरा एंगल R TRB का पार्ट नहीं है. Look over here, यहाँ पर देखो आप. This is given to us that RT is equals to ST. Given है. I'm using your concept but not directly in the over here. RT और ST equal हैं, then the angle opposite to RT is your angle S, and angle opposite to ST is your angle R. These are the angles opposite to equal side. ये होगा, इतना होगा, इतना होगा. एक्सटर्न. नेक्स्ट देखिए, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ऐसा लिख सकते हैं. क्यों? यस,
दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं एंगल 1 एंड एंगल 4. एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 4 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3. ऐसा ही गिवन है. This 2 will get cancelled and from here we can say that angle 2 is equals to angle 3. एंगल 2 और एंगल 3 दोनों इक्वल हैं. दोनों इक्वल होंगे. यहाँ तक क्लियर है. अब यहाँ से आपको कहीं से समझ में आ रहा है किसी और को भी हम इक्वल प्रूफ कर सकते हैं. रिमेनिंग एंगल इसको यस इक्वल कर सकते हैं. सही कॉन्सेप्ट पे आप पहुँचे हो, पर कैसे? कॉन्सेप्ट आपने सही बताया है. साइड्स इक्वल हैं, ठीक है. इन देखिए अभी हमने यस बिल्कुल देखिए. अब देखते हैं एंगल पहुँच के आप लोग कॉन्सेप्ट तक सॉल्व करते हैं. एंगल एस और एंगल आर अभी हमने बोला इक्वल है. इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंप्लीट एंगल एस और कंप्लीट एंगल आर. ठीक है. एंगल एस और आर इक्वल हैं. एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल हैं. सो एंगल एस माइनस एंगल 2 एंड एंगल आर माइनस एंगल 3 ये भी इक्वल होंगे. जिसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने 2 3 माइनस कर दिया और बोल रही हूँ इक्वल है, दोनों साइड में 2 ही सब्ट्रैक्ट कर दूँ. फॉर अ मोमेंट सपोज दैट मैं यहाँ से भी माइनस एंगल 2 कर रही हूँ, यहाँ से माइनस एंगल 2 कर रही हूँ. अब सही है, दोनों तरफ सेम एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये इक्वल होंगे. और एंगल 2 और एंगल 3 दोनों इक्वल है. सो कैन वी रिप्लेस एंगल 2 बाई एंगल 3? होगा या नहीं होगा? यस. तो ये दोनों इक्वल. एंड नाउ व्हाट इज एंगल एस माइनस एंगल 2? उल्टा मैंने कर दिया. यहाँ पर 3 लिखना चाहिए, यहाँ पे 2 लिखना चाहिए. एंगल एस माइनस एंगल 3. एंगल एस मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंप्लीट एंगल एंड दिस इज योर एंगल 3. सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा? रिमेनिंग क्या है? क्या है एंगल का नाम बताइए. एंगल टी एस ए यही वाला एंगल आएगा. एंड एंगल आर माइनस एंगल 2 मीन्स वी विल गेट दिस एंगल दैट इज योर एंगल टी आर बी. And these angles are the parts of triangle RBT and angle SAT. यहाँ पे हमने 2 क्राइटेरियंस इक्वल किए थे. थर्ड वन हमें यहाँ से मिला है एंगल TSA इज़ इक्वल्स टू एंगल TRB. थर्ड हमें यहाँ से ये मिल गया, मतलब तीसरा भी हमें एंगल मिल गया. तो यहाँ से देखिए एक साइड है, 2 एंगल्स हैं. सो यहाँ पे एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन होना चाहिए. देखते हैं क्या एंगल साइड एंगल बन रहा है. ट्रायंगल RBT देखिए, RBT. हियर वी गॉट एंगल T. दिस इज कॉमन एंगल. दिस साइड RT वॉज इक्वल एंड वी हैव प्रूव्ड दैट दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल. सो एंगल साइड एंगल बन रहा है. सो यू कैन से दैट, ये आपको नीचे लिखना है, मैंने ऊपर लिख दिया डायरेक्टली. यू कैन से दैट ट्रायंगल RBT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SAT बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी. यही हमें प्रूफ करना था, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. क्लियर है कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का?